Good morning, students. So today we are starting with chapter 1 of our Panorama book. The name of a chapter is The Tiger King, and the writer of a chapter is Kalki, who used to write by the pen name of Kalki. And he had written many short stories, novels, editorials, political writings, music reviews, etc. Now, the story starts. Who is this Tiger King? This Tiger King is the Maharaja of Pratibandhpuram, and he is the hero of our story. So the Maharaja of Pratibandhpuram, his name when he was born, it was His Highness Jamidar General Khiledar Major Sata Vyagra Samhari Maharaja Dhiraja Viswa Bhuvana Samrat Sir Jilani Jang Bahadur, and short form of that was MADACTC or CRCK. But this name was shortened to the Tiger King. Now the story, of course, this comes in the end. Why we call him the Tiger King? The author, he does not want to reveal the secret why we call him the Tiger King, because that will make us lose our interest in the story. Now before starting his story, he is saying that when we will go through this story, we will want to meet the Tiger King, because he was a person with such courageous person with indomitable courage, and we want to meet him face to face. But then he is saying that it is not possible because the Tiger King is already dead. So after reading the chapter, when we would like to meet such a courageous person, will not be able to fulfill our wish because he is dead. Now he starts with the story. He says that when that child was born at that time, because he was of course the son of a king, he was a crown prince, so all the astrologers were assembled there, and everyone was biting their lips, because everyone was saying that the manner of the death of this extraordinary child is going to be extraordinary. Everyone was very suspicious. They were going through their books, reading a lot of theses and doing a lot of work on the manner of his death, and everyone was so confused that he will die. And what happened is that a miracle happens at that very moment. And what miracle? The miracle was that the prince, who was only 10 days old at that time, he started to speak, है ना. What a miracle कि एक 10 दिन का बच्चा जो बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, वो अपने सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ बैठे हैं कि क्या तब से एक ही बात बोले जा रहे हो कि ये मरेगा. ऑब्वियसली जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा. अगर आप इतने ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हो तो यू टेल मी द मैनर इन विच आई एम गोइंग टू डाई. मुझे बताओ मैं कैसे मरूँगा. ठीक है. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी बहुत सारी बुक्स को निकालता है, उनको देखता है, बहुत इधर उधर टैली करता है, और फिर वो बोलता है कि दिस चाइल्ड इज़ बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी. सो देयरफॉर द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी अ टाइगर. ये बच्चा जो है एक टाइगर की वजह से मरेगा. तो ये एक मिरेकल था जब वो बच्चा पैदा हुआ था, तब हुआ था. उसके बाद में जब तक वो बड़ा हुआ, ऐसा कोई भी मिरेकल नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि वो बचपन में ही बोलने लग गया, बहुत जल्दी चलने लग गया. वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हुआ. और जैसे वो प्रिंस ऑफकोर्स उस टाइम जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे तो सब कुछ हम उनको फॉलो करना चाहते थे इंडियंस, तो इसी तरह से उस टाउन प्रिंस को भी बड़ा किया गया, है ना. उसको इंग्लिश की बुक्स पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश ग्रैनीज उसको रखती थी, इंग्लिश मूवीज़ दिखाई जाती थी, इंग्लिश काव का दूध उसे पिलाया जाता था, और ये हमें उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. अब ऐसा कोई मिरेकल उसकी लाइफ में दोबारा हुआ नहीं, लेकिन जो मिरेकल उसके बचपन में हुआ था, अक्सर वहाँ पे लोगों में उसकी जो बातें वो होती रहती थी कि जब ये बच्चा था तब ऐसी कोई जो भविष्यवाणी है वो की गई थी. ये बात जो है धीरे धीरे करते करते उस क्राउन प्रिंस के कानों तक पड़ी. ऑफकोर्स हमको स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि हाउ दैट द क्राउन प्रिंस ही वॉज वेरी करेजियस. तो ऑफकोर्स वो करेजियस था, तो उसको कहा कि देखता हूँ टाइगर मुझे मारता है या मैं टाइगर को मारता हूँ, और वो निकल पड़ता है टाइगर हंटिंग पे, और बहुत आसानी से वो एक टाइगर को हंट कर लेता है. और अपना वेलर शो करने के लिए, अपनी विक्ट्री शो करने के लिए वो अपने उस चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसको बोलता है कि हाँ तुमने क्या भविष्यवाणी करी थी, तुमने ये भविष्यवाणी करी थी ना कि जो मैं है कि मुझे एक टाइगर है वो मार देगा, तो देखो मैं टाइगर को मार के लेके आ गया. तो उसको जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कह रहा है कि तुम 99 टाइगर्स को इतनी ही आसानी से मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने 100 टाइगर को मार दिया तो मैं अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजीज़ की बुक है उन सबको फाड़ दूंगा. और जो पंडित होते हैं वो क्या करता है, टफ्ट रखते हैं ना, यहाँ पे एक चोटी रखता है, बोलता है मैं अपनी टफ्ट को कटा दूंगा, मैं एक LIC का एजेंट बन जाऊँगा, लेकिन तुमको 100 टाइगर्स जो है वो मारने होंगे. ठीक है. अब जो टाइगर किंग है उस दिन से टाइगर्स के पीछे पड़ जाता है ना.
पूरी हंटिंग प्रतिबंधपुरम के अंदर बंद कर दी जाती है। टाइगर हंटिंग कौन करेगा? सिर्फ वो राजा करेगा। और अगर बाई चांस किसी और आदमी ने को टाइगर हंट करते हुए पा लिया गया तो उसकी जितनी भी वेल्थ है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, वो सारी राजा ले लेगा, है ना, उसको एकदम निकाल दिया जाएगा, उसको सजाए मौत भी हो सकती है। तो लोगों ने टाइगर हंटिंग एकदम बंद कर दी, सिर्फ राजा जो है वो टाइगर हंटिंग कर सकता था। अब महाराजा ने सब कुछ छोड़ दिया, उसका दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे 100 टाइगर्स को मारना है, 100 टाइगर्स को मारना है। धीरे धीरे रोज़ वो ये काम करता रहता था, ठीक है। अब एक दिन अचानक क्या हो गया कि कोई हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम आया। अब उसको भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था, ठीक है। अब और उसको क्या एक्चुअली में आदत थी कि वो टाइगर को हंट करके और फिर उसके साथ फ़ोटोग्राफ लेने में उसको बहुत मज़ा आता था, ठीक है। अब उसने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो टाइगर को हंट करेगा प्रतिबंधपुरम में, लेकिन महाराजा तो किसी के लिए भी ना झुके, तो ब्रिटिश ऑफिसर क्या चीज़ है, उसने उसको परमिशन देने से मना किया। और वो उसको क्या बोल रहा है कि आप बोलोगे मैं आपके लिए बियर हंट करा दूंगा, माउस हंट करा दूंगा, मस्कीटो हंट करा दूंगा, लेकिन मेरे शहर के अंदर टाइगर हंट जो है वो इम्पॉसिबल है। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसने कहा कि मैं दीवान के साथ एक मैसेज भिजवाया कि मैं जो एक्चुअल किलिंग है वो महाराजा करे, ठीक है, क्योंकि मुझे तो फोटोग्राफ चाहिए, लेकिन मैं उस टाइगर के साथ में एक फ़ोटो ही खींचूंगा। लेकिन महाराजा उस प्रपोज़ल के साथ भी खुश नहीं हुआ, ठीक है। अब जो महाराजा ऑफकोर्स अब ब्रिटिशर्स ऑफिसर को मना करा तो कुछ भी हो सकता था, उसके साथ उसका राज्य भी उसे जा सकता था। तो उसको सजेशन मिला कि अगर हम उसकी वाइफ को एनी हाउ अगर हम खुश कर देंगे तो वो जो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं पैसिफाई कर लेगी। तो जो महाराजा और दीवान ने आपस में बातचीत करी और उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप है ना कलकत्ता की, जो सबसे मशहूर डायमंड शॉप थी, वहाँ पे उन्होंने मैसेज भेजा और उनको बोला कि जो आपके पास सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे खूबसूरत जो डायमंड रिंग है वो आप भेजो, ताकि वो उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को दें, है ना, गिफ्ट पाके आपको उसको खुश हो जाएंगे और वो थोड़ा इनके एहसानों के तले दब जाएंगे। अब जो ज्वेलर है उसको भी समझ में नहीं आया कि मैं राजा को कौन सी रिंग भेजूँ। उसने क्या करा, उसने एज अ सैम्पल 50 रिंग्स भेज दी, बहुत एक्सपेंसिव डायमंड की बहुत खूबसूरत रिंग्स। अब जब राजा के पास आई तो राजा भी बहुत कंफ्यूज था, उसको भी समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सी रिंग रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो उसने चॉइस करने के लिए सारी जो रिंग्स है वो उस ब्रिटिश लेडी के पास भेज दी, और उसके पास क्या जवाब आता है, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट्स। मतलब वो जो लेडी है वो सारी 50 के 50 रिंग्स रख लेती है, और उनका जो बिल आता है वो आता है 3 लाख रुपए का। उस टाइम 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 3 लाख की कीमत की उसकी शायद पूरी जो उसकी जो किंगडम था वो था। लेकिन फिर भी जो महाराजा है वो बहुत खुश था, एटलीस्ट ही वॉज एबल टू रिटेन हिज किंगडम, ठीक है। अब जो महाराजा है वो कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहा था, है ना, 10 साल के अंदर अंदर उसने 70 टाइगर मार दिए। लेकिन अब एक जो हर्डल आ गया, अब क्या है, ऑफकोर्स टाइगर है ना एक्सटिंक्ट स्पीशी हो रही है धीरे धीरे, तो टाइगर पॉपुलेशन वैसे भी कम होती है। अब प्रतिबंधपुरम के जंगलों के अंदर टाइगर दिखना ही बंद हो गए, बहुत कम टाइगर्स जो मिलते थे। ऐसे लगता था जैसे टाइगर्स को भी पता चल गया है कि यहाँ का राजा जो हंटिंग करता है, तो उन्होंने भी जो शहर जंगल जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है। अब जो महाराजा है उसने अपने दीवान को बुलाया और उसने बोला कि भाई तुमको पता है अब टाइगर तो है नहीं और मेरे 30 टाइगर जो है अभी बचे हुए हैं, तो मुझे जो है आप एक काम करो, मुझे शादी करनी है। तो वो दीवान बोलता है किससे शादी करनी है, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे एक जो है फ़नी एलिमेंट डाला गया है कि बीच में दीवान को लगता है वो बंदूक से शादी करना चाहता है, फिर उसको कहीं लगता है कि वो दीवान से शादी करना चाहता है। तो राजा उसको समझाता है कि ना ही तो मैं मेरी बंदूक से शादी करूँगा, ना ही आपसे करूँगा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ऑफकोर्स एक राजकुमारी हो और जिसके फादर के राज्य के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन, और ऑफकोर्स वहाँ पे उसको टाइगर हंटिंग की परमिशन मिले। तो उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढी गई, उसको ऐसी एक लड़की मिली जिससे कि वो शादी, दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया और उसकी शादी एक ऐसी लड़की से किया गया जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइगर थे, है ना। तो जब भी वो ससुराल जाता वहाँ पर वो टाइगर हंटिंग करता, है ना, और वो बहुत तेज़ी से अपने जो हंटिंग के अंदर लगा हुआ था, दिन रात वो उसके अंदर चल रहा था। जब भी वो अपने फादर इन लॉ की किंगडम में जाता वो वहाँ पर टाइगर हंटिंग करता, ठीक है। अब क्या है, अब उसने धीरे धीरे जो है अपने जो फादर इन लॉ था उनका किंगडम के जो भी सारे टाइगर्स हैं उनको मार दिया, ठीक है। अब जो टाइगर है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उसने अपने दीवान को बुलाया और उसने अपने दीवान को बोला कि मैं जो जितना भी टैक्स है उसको डबल कर दूंगा अगर मुझे जो है वो
नहीं मिला और जो हमारा किंगडम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा अगर मुझे टाइगर नहीं मिला। अब दीवान जो है वो टेंशन में आ गया, क्योंकि ऑफकोर्स अगर राज्य नहीं रहेगा या तो राज्य किसी ब्रिटिशर्स का, तो वो दीवान की पोस्ट भी उसकी चली जाएगी। तो वो बहुत टेंशन में आ गया। उसने घर आके अपनी वाइफ को बताया, तो उनको लगा कि अब तो कैसे ना कैसे उनको एक 100वां टाइगर तो ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। वो कहाँ गए, वो पीपल्स पार्क मद्रास गए। वहाँ पे छुप के उन्होंने जो वहाँ पे ज़ू का जो टाइगर था, बूढ़ा सा टाइगर था, उसको बहुत ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया और उसको जंगलों के अंदर लाके छोड़ा। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत फ़नीली उसको पोर्ट्रे किया है कि किस तरह से वो टाइगर है जो गाड़ी से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है, ऐसा उन्होंने शो किया इसके अंदर। उसके बाद में जो महाराजा है, जब फिर दीवान ने बताया कि एक और टाइगर दिखा है जंगलों में, दिखा है जंगलों में, उसने ऐसे थोड़ी कहा कि मैं लेके आया हूँ। और राजा जब पूरी तैयारी के साथ सब हंटर्स वंटर्स सब जो वहाँ पे गए, क्योंकि 100 टाइगर से उसको भी थोड़ा खतरा था, तो सब हंटर्स के साथ में वो वहाँ पर उस बूढ़े टाइगर को शूट करने के लिए गए। राजा ने उसको शूट करा, गोली चलते ही जो टाइगर है वो ज़मीन पे गिर गया। और राजा ने कहा कि भाई इसकी जो डेड बॉडी है इसको पूरे ऐसे जश्न के साथ, डीजे वीजे के साथ, बैंड बाजे के साथ पूरे शहर में घुमाते हुए लाया जाएगा ना, क्योंकि ये मेरी विक्ट्री और आज शाम को बहुत बड़ा जो ग्रैंड प्रोग्राम होगा। और राजा वहाँ पे अपने वेलर पे खुशी मनाता हुआ वहाँ से चला गया, है ना। और जो राजा के आदमी वहाँ खड़े थे वो उस टाइगर को भाई उसको उठाने की, क्योंकि उसकी अर्थी को सजा के लेके जाना था, उसकी तैयारियों में लगे। अब राजा के निकलते ही क्या हुआ, एक्चुअली में वो टाइगर जो है वो मरा नहीं था, वो बुलेट की आवाज़ सुन के, बंदूक की आवाज़ सुन के वो बेहोश हो गया था। उसने आंखें खोल ली, वो जिंदा हो गया। अब सब लोग डर गए कि अगर राजा को ये बात पता चली तो राजा तो जान से ही मार देगा। तो उनमें से एक कोई हंटर था, उसने क्या करा, उसने उसको कहा गया कि तू इसको मार दे, और उसने अपनी गोली से जो टाइगर को मार दिया। मतलब टाइगर ने, राजा ने तो कितने मारे, 99 ही, 100 टाइगर को तो उस हंटर ने मारा। अब राजा जो एकदम सेटिस्फाइड हो गया था। अब राजा ने इतने सालों से अपने किंगडम पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसका जो बेटा है वो भी बेटा भी हो गया था, जो 3 साल का होने वाला था। अब उसके बेटे का बर्थडे आने वाला था और उसको लगा कि मुझे मेरे बेटे को कुछ डिफरेंट सा गिफ्ट देना चाहिए, है ना, कुछ अलग सा गिफ्ट देना चाहिए। तो उसने क्या करा, अपने बेटे के 3rd बर्थडे पे, अब उसको क्या हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है, जगह जायदाद की, महंगे टॉयज़, वो सब कुछ ले सकता था। लेकिन जो राजा, उसने क्या करा, उसने कॉमन आदमी के जो कपड़े पहने और वो निकल पड़ा तलाश के अंदर कि उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट मिले, है ना। तो रास्ते में एक खिलौनों की दुकान होगी जिसके ऊपर होता है ना कि किसी नव सीखे कारपेंटर ने, है ना, जिसको अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आती होगी, उसने कोई टाइगर बना रखा था। और राजा अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराता है कि एक टाइगर की, मेरे बेटे के लिए इस खिलौने से बेहतर कुछ भी नहीं होगा कि टाइगर है। अब क्या वो प्रॉपरली फिनिश भी नहीं था, ख़राब सा था, है ना, और उसने एकदम कॉमन मैन के कपड़े पहन रखे थे। लेकिन फिर भी राजा तो राजा है, जो वो दुकानदार था वो राजा को पहचान गया। अब मान लो वो जो टाइगर था ना छोटा सा, वो था 5 रुपये का ही मात्र। लेकिन अब उस आदमी को लगा कि मैं 5 रुपये का टाइगर अगर राजा के सामने बोलूँगा तो ये राजा की इतनी बड़ी इंसल्ट होगी, है ना, कि मैं 5 रुपये का टाइगर बेच रहा हूँ। तो वो डबल ट्रिपल, वो मतलब ऐसे समझ लो वो 5 रुपये के टाइगर के वो बोल देता है कि 5 लाख का वो टाइगर है। मतलब बहुत ही डबल उससे वो कीमत ले लेता है। और राजा बहुत ही हैप्पीली, अब राजा ने कौन सी शॉपिंग की होती है पहले, है ना, कौन सी बार्गेनिंग्स की होती है, राजा बहुत मतलब एकदम ईजिली उसको जो है वो पैसे, है ना, जैसे इसमें 300 रुपये है ना, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि 5 का 5000, है ना, वो होता तो 3 रुपये का, लेकिन वो 300 रुपये का वो टाइगर वो जो लेके आ जाता है और वो बहुत खुश होता है ना। और वो बाप बेटे जो हैं अपने उस टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं कि उस टाइगर की एक फांस होती है ना, एक ब्लेड जो है वो उसके हाथ के अंदर जो है चुभ जाती है, चली जाती है, सिल्वर, है ना, हल्का सा कई बार जो अपने लकड़ी से लग जाती है, और उससे उसके जो हाथ के अंदर है इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगले दिन जो इन्फेक्शन है वो इतना बढ़ जाता है, जगह जगह से वैद्य हकीमों को बुलाया जाता है, दवाई दी जाती है, ऑपरेशन भी किया जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो महाराजा है वो नहीं बच पाते हैं। एंड इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक द फाइनल रिवेंज on the Tiger King. So this is the story about the Tiger King. I hope all of you understood the chapter.